A very heartfelt morning to judges, faculty members and the audience. We are Fearless Failures with our group leader Anya, Prachi, Sejal, Naitik, Rudang, Janvi and me Vibhuti. We all are here to present our PPT on a quality which is quite essential in everyone's life, which is courage to fail. Here everyone talks about success and how to achieve it. But today we are here to not to talk about success but what to do if you fail. हम सब ने 12th फेल और छिछोरे जैसी मूवीज़ तो देखी है, उन सबको पसंद भी किया है. छिछोरे मूवी का एक डायलॉग है, सक्सेस के बाद का प्लान तो सभी के पास होता है, पर अगर फेल हो गए तो फेलियर से कैसे डील करने की कोई बात ही नहीं करता. दिस शोज अस दैट फेलियर इज नॉट द एंड बट अ लेसन. As the saying goes, fail means first attempt in learning. So join our group as we teach you to look at failure a bit differently. Not as a full stop, but as a comma. Not as a defeat, but as a beginning of your new growth. And join us on this journey where we teach you what is courage to fail and how failure can become your first stepping stone in the journey of success. Now, I would like to call Janvi for further. Thank you, Vibhuti. As we heard, courage to failure, but it's not about avoiding the failure. It's about how we respond it. So let's see how we respond if failure comes our way. There are bowls of failure and success sheet. We will distribute among you them. So tell me, who got the failure? Right. Will you try again or will you just give up? So let's try again. We will again distribute the cheats to you. So tell me what you all got. That's right. फेलियर कभी बता कर नहीं आता. फेलियर लाइफ के किसी भी मोड़ में आ सकता है. एग्ज़ाम में, कंपटीशन में या फिर लाइफ के किसी भी एक इम्पॉर्टेंट मोमेंट पर फेलियर आ सकता है. फेलियर से हार मत मानो. फेलियर आए तो ट्राई अगेन बोलकर खुद को हौसला दो. फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन आई डू लाइक to invite everyone. Today's success is visible everywhere. But failure are often hidden from the world. This creates an unrealistic picture of success and put immense pressure on everyone. That pressure from people to the taking chance. Real growth comes when we welcome failure. That's exactly why today's topic is so relevant to. For further information, I would like to call Naitik on the dance. Hi guys, I will start a core ideas for courage to fail. लाइफ में बहुत सारे फेल्यूर्स आते हैं, लेकिन हम फेल्यूर से डरना नहीं, उससे कैसे पूरा कर सकते हैं, अपना सक्सेस कैसे पा सकते हैं, हमें वो देखना चाहिए. ट्रू सक्सेस हमें तब मिलता है जब हम फेल्यूर का एक्सेप्ट करने का करेज रखते हैं. ट्रू सक्सेस को पाना बहुत इजी है, पर हमें समझना चाहिए कि हमें कब फेल्यूर से लड़ना चाहिए, हमें ट्राई करना चाहिए, अटेम्प्ट्स लेना चाहिए. नहीं तो बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो सक्सेस आने पर फेल्यूर आने पर गिव अप कर लेते हैं. हमें गिव अप नहीं करना चाहिए, ट्राई करना चाहिए, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग होते हैं, बहुत से ऐसे सी होते हैं जिनके करियर में बहुत से फेल्यूर आते हैं, लेकिन वो कभी गिव अप नहीं करते. वो अपने करेज को ट्राई करते रहते हैं. इसलिए बहुत से सी अपने करेज टू फेल का मतलब है
कि फेल्यूर से डरना नहीं बल्कि अपने करेज टू फेल का मतलब फेल्यूर से डरना नहीं बल्कि उसमें सक्सेस पाना और अपने गोल को अचीव करना। आई वुड लाइक टू इनवाइट आनिया। हेलो। जिस दिन सपने टूटते हैं इरादे उसी दिन जन्म लेते हैं। भले ही विश्व कप जीत ना सके लेकिन चैंपियंस हार के ही बनते हैं। On 19 November 2023, the entire nation believed the history was about to be written. इंडिया पूरे टूर्नामेंट में 10 के 10 मैच जीत चुका था, बट इन द फाइनल्स अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया थिंग्स चेंज। इंडिया got defeated by 6 wickets. At that moment, India could have let the loss define them, but instead they learned from it, rebuilt their confidence and continued star for their success. कहते हैं ना, जब फेलियर हमें कुछ सिखाता है तो वो फेलियर नहीं कहलाता। उसी के 7 महीने बाद इन 2024 India lifted ICC T20 World Cup trophy. That is the essence of courage to fail, accepting your defeat without letting it destroy your determination. अगर इंडिया जैसी स्ट्रॉन्ग टीम फाइनल में जाके हार सकती है, then failing one exam, one interview or one opportunity is not the end of our story. In real, the victory means having courage to stand up, learn and play the next match with the same passion. Talking about our second comeback story, CA Shaili Chaudhary. Everyone celebrate the success, but many few know the battles they fought before reaching the top. CA Shaili Chaudhary's journey is one such story. She wasn't a topper. She failed rejections, missed opportunities, and struggled through nearly 9 CA intermediate attempts. When she reached her CA final, she failed her very first attempt. At that time, she only had 2 choices: accept the defeat or challenge it. उन्होंने obviously second वाला choose किया. Instead of allowing her failure to define her, she chose her failure to refine her. In 2015, the same girl who had failed the very first attempt of CA final stood at the top of the nation by securing All India rank 1. Society may remember Shaili Chaudhary as AIR1, but the rank wasn't a real achievement. Real achievement for CA Shaili Chaudhary was the courage to stand up every time failure knocked her down. कोई भी फील्ड हो, चाहे वो सी अकाउंटेंसी हो, क्रिकेट हो या कोई और फील्ड हो, सभी की लाइफ में फेलियर का रास्ता हमेशा असफलताओं से ही गुजरता है। तो फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन आई वुड लाइक टू कॉल नैतिक ऑन द डायस। थैंक यू। द जर्नी इज़ टू बिकम अ CA इज़ अ मैराथन नॉट अ स्प्रिंट। CA बनने के लिए हमें बहुत से चैलेंजेस आते हैं, पर हमें चैलेंजेस और फेलियर्स आते हैं, लेकिन हमें उससे डरना नहीं चाहिए, बल्कि उसके लिए हमें प्रैक्टिस करना चाहिए। CA बनने के लिए हमें पेशेंस और हार्ड वर्किंग की ज़रूरत होती है। CA एक प्लेटफॉर्म है जो स्टूडेंट्स को नॉलेज, गाइडेंस और मोटिवेशन प्रोवाइड करता है। CA बनने के लिए हमें प्रोफेशनल, हार्ड वर्किंग और मोटिवेशन स्किल की ज़रूरत होती है। CA बनने बाद हमारे कम्युनिकेशन स्किल्स और मोटिवेशन प्रोवाइड करने में हेल्प करता है। CA बनने के बाद हमें बहुत से वर्क आते हैं हम जो कर सकते हैं, पर हमारे फेल्यूर में ऐसे पार्ट होते हैं कि हम जो CA बनने के बाद नहीं कर सकते। फेल्यूर एक लाइफ का नॉर्मल पार्ट है। हमारे जो ड्रीम्स होते हैं वो कंटिन्यूसली एक्सेप्ट करना चाहिए। CA कनेक्ट मतलब जो हमें CA के लिए इंफॉर्मेशन दे रहा है, उससे हमें डरने के बजाय अपनी मिस्टेक से कुछ नया सीखना चाहिए। हमें फर्स्ट लर्न करना चाहिए, लर्न करने बाद प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट, ये हमने बहुत जगह सुना है, पर हमें परफेक्ट मतलब मेहनत इतनी करनी चाहिए कि हम सक्सेस ले सकते हैं। फेल्यूर आएंगे लेकिन हमें उसे एक्सेप्ट करना चाहिए, बल्कि नहीं उससे डरना नहीं चाहिए। सर, आपके भी लाइफ में ऐसे बहुत से फेल्यूर्स होंगे, फेल्यूर आएंगे, पर लेकिन आप उसमें से बाहर निकलेंगे। तो एक आपका एग्जाम्पल। हमारा अक्षर मेरा एक दोस्त है, उसको IPCC में 4 अटेम्प्ट लग गए थे, बट CA फाइनल उसने फर्स्ट अटेम्प्ट में ये कर लिया था। वो भी अच्छा था हमारे लिए कि 4 अटेम्प्ट लगने के बाद भी उसने फर्स्ट अटेम्प्ट में CA फाइनल पार कर लिया। AIR के आसपास ही उसको मार्क्स आए। सर, जैसे आपने कहा कि आपका एक फ्रेंड था जिसने
4 अटेम्प्ट लगे, पर उसने अब गिव अप नहीं करा, उसने ट्राई करते। सी करेक्ट हमें ये सीखा। थैंक यू नैतिक। हम सब ने लाइफ में कभी ना कभी फेलियर का सामना किया है, लेकिन क्या फेलियर इतना बुरा होता है या सोसाइटी का उसे देखने का नज़रिया? Let's understand the view of society. Society celebrates success but often judges failure, creating comparison, pressure and fear. As a result, many people stop believing in themselves and hesitate to make second chance or move forward. Society remembers your failure, success make them forget it. लेकिन सोसाइटी की ओपिनियन और जजमेंट से ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारे लिए हमारी एफर्ट्स ग्रोथ और लर्निंग मायने रखती है। चलिए इसे और अच्छे से समझते हैं। आप सभी ने कोटा के इंस्टीट्यूट के बारे में तो सुना ही होगा। हर साल वहाँ लाखों स्टूडेंट्स अपने सपने और उम्मीदें लेके जाते हैं। While many succeed, some feel crushed by the fear of failure and the pressure meet to those expectations. प्रॉब्लम कोटा में नहीं है, प्रॉब्लम हमारी सोच में है। जब एक एग्ज़ाम किसी इंसान की वेल बिगनिंग और हेल्थ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनती है, देन फियर्स बिकम स्ट्रॉन्गर देन होप. दैट्स वाई करेज टू फेल इज जस्ट नॉट अ मोटिवेशनल आइडिया, इट्स नेसेसिटी. Some common mistakes people do when they fail. First, we fear failure more than failure itself. Second, we avoid taking risks because afraid of falling. Third, we chase result only, not on a focus on learning or growth. We follow others' opinion. मैं इतना कहना चाहूँगी, हमें अपने फेलियर को अपना फियर नहीं, अपनी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बनानी है. But what can we do it? For this answer, I invite to For answer this, I invite to Prachi on the dais. Thank you, Sejal. Thank you, Sejal. To rectify the mistakes according failure, these are some solutions which you can follow. First, accept learning. Accept that failure is a part of learning, and every successful person in this world fails several times before achieving their goal. Second, value effort. Value your effort and be proud of your hard work, not only your result. Face new challenges and improve yourself. Third, embrace challenges. Treat every failure as your feedback. Fourth, follow value. Remember that exam, interview or a match does not decide your entire life. Don't give up and keep trying. जैसे कि आपने देखा कि चाहे वो CA एस्पिरेंट हो या फिर क्रिकेटर या फिर हम सब में से कोई, सब ने अपने लाइफ में कभी ना कभी फेलियर फेस किया है. नाउ आई वुड लाइक टू कॉल नैतिक रुदांग फॉर द एक्सप्लेनेशन. Now I will explain lesson of courage to fail. First, failure is teacher, not the end. Failure teaches us where we went wrong and exactly what do we do to improve. हमें फेल्यूर क्या सिखाता है ये हमने पहले लेसन में सीखना है. अगर हमने फेल्यूर को अगर हमने देखा तो फेल्यूर हमें सिखाता है कि हमने कौन सी गलती की और उसको कैसे इम्प्रूव करना चाहिए. यही हमें फेल्यूर सिखाता है. इन द पास्ट मेनी सक्सेसफुल पीपल फेल बिफोर अचीविंग देयर गोल्स. ऐसे बहुत सारे लोग थे जिन्होंने अपने सक्सेस के पहले फेल्यूर का सामना किया और उन्होंने देखा कि हमारी कौन कौन सी गलती हो रही है और उनको हम कैसे इम्प्रूव कर पाए. यही हमें फर्स्ट लेसन सिखाता है. सेकंड, योर वर्थ इज़ नॉट डिफाइंड बाय वन रिजल्ट. एन एग्जाम, इंटरव्यू, कॉम्पिटिशन कैन मेजर योर परफॉर्मेंस बट इट कैन नेवर मेजर योर पोटेंशियल एंड कैरेक्टर. हमको सेकंड लेसन यही सिखाता है कि हमें कौन कौन सी चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए और कौन कौन सी चीज़ों पे नहीं, जिससे अपना परफॉर्मेंस बढ़ता है और उसके साथ टैलेंट भी. यही हमें सेकंड लेसन पढ़ाता है. थर्ड, रिलीजियंस इज बिल्ड थ्रू सेटबैक. एवरीवन फेस फेल्योर एंड प्रॉब्लम इन देयर लाइफ. दिस प्रॉब्लम मेक अस स्ट्रॉन्गर. व्हेन वी फेस इट एंड डू नॉट गिव अप, वी आर बेटर देन अदर्स. अगर हम प्रॉब्लम को समझकर उसको इम्प्रूव करें तो हमें समझ में आता है हमारी कौन कौन सी गलतियाँ हो रही है. अगर हम उसको इम्प्रूव करें तो हमें इम्प्रूव करने के बाद हमें समझ में आता है कि
हम अदर से कैसे बड़े हो रहे हैं, मतलब कैसे अपन इम्प्रूव कर रहे हैं दूसरे लोगों के साथ. थैंक यू. आई वुड लाइक टू इनवाइट जानवी फॉर फर्दर. So today we don't want to remember our presentation. We want to remember that one thought. फेलियर से मत डरो, ट्राई ना करने से डरो. फेलियर हमें लाइफ में कुछ ना कुछ सिखाती है. जाते जाते मैं आपको एक डायलॉग बोलना चाहूँगी. अगर किसी चीज़ को हम दिल से चाहे तो पूरी कायनात उसे हमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है. फॉर फर्दर आई वुड लाइक टू इन्वाइट माई टीममेट्स ऑन द डाइस. से डर के नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, हार नहीं होती. With this, fearless failures are signing off and are open to answer your questions. Thank you. और सीए कम्युनिटी इज वन ऑफ द कम्युनिटीज जहाँ पे फेलियर को गंदे तरीके से नहीं देखते. वी कॉल इट अटेम्प्ट्स. सो ये सीए के लिए बहुत रेलेवेंट टॉपिक था. गुड, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया. एंड आप अच्छे से बोल रहे थे, फिर जैसे ही आपका टॉपिक आया ना तो आप डर गए पीछे देख के. तो आप वर्ड से डर चुके थे कि क्या बोलना है उसको, पर उसके पहले बहुत अच्छा बोल रहे थे. तो आई थिंक थोड़ा सा उस पर काम करना, क्योंकि वरना आप बोल बहुत अच्छा रहता है. Hi, you guys are looking amazing. Presentation किसने बनाया है? As a team. Okay, so who decided the logo and the aesthetics and such? Like you have kept the color grade constant. लोगो हमने सीजन इसने डिज़ाइन किया है और टेम्पलेट्स और वो सब मैंने और नैतिक ने करा है. और ट्रांजिशंस आन्या प्राची एंड जैस्मिन. Okay, so it was a teamwork. Yes. Yeah, okay. So the sources you have added, it's just that कि इसके अलावा भी और कुछ है? माइनर सोर्सेज है, लाइक एनोनिमस वेबसाइट्स, बुक्स, जहाँ से हमने एक दो लाइन्स, सेंटेंसेस या इंस्पिरेशन लिया है और उन सबको कंबाइन करके चैट जीपीटी से एक फाइनल स्क्रिप्ट बनाई है जो आज आपके सामने है. Okay, okay. Yeah, that's it from my end. Thank you. थैंक यू गाइस, आपने बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दिया है और ये इंस्पिरेशन है करेज टू फेल और फेलियर को एक्सेप्ट करके वापस बाउंस बैक करना. इट इज नॉट दैट इजी, नॉट इजी फॉर एनीवन, बट स्टिल आपका माइंडसेट इसमें बहुत रोल प्ले करता है. थोड़ा सा आप इसके ऊपर माइंडसेट के ऊपर भी बोल सकते थे और इसके ऊपर आपको ना हर किसी इंसान को मोटिवेशन की जरूरत है और मोटिवेशन सेल्फ से बहुत कम आता है, वो बाद में आता है. पहले आपको यू नीड अ मेंटर. तो उसमें मेंटरशिप बहुत काम करती है. आपका फ्रेंड मेंटर हो सकता है, आपके मम्मी पापा मेंटर हो सकते हैं, आपके टीचर्स मेंटर हो सकते हैं. तो आपने एग्जाम्पल्स बहुत अच्छे लिए. ये बहुत अच्छा टॉपिक था. आप यू शुड बी ग्रेटफुल, थैंकफुल टू एम स्क्वायर एंड गॉड कि आपको ये टॉपिक मिला. आपने ये बहुत अच्छा प्रेजेंट किया, निभाया उसको और आपने एग्जाम्पल बहुत अच्छी लिए. स्पोर्ट्स से बड़ा फेलियर कोई चीज में होता ही नहीं है. जो स्पोर्ट्स में आपको वो मोमेंट है और वो पूरा देश आपके लिए सेलिब्रेट करने के लिए, ये जो वर्ल्ड कप का एग्जांपल, ये लेटेस्ट और बेस्ट एग्जांपल है. मैंने एग्जांपल्स में कई प्रेजेंटेशंस में एग्जांपल गलत दिए गए, अच्छे थे, रिलेवेंट थे बहुत, लेकिन वो बहुत उसको कोर को नहीं हिट कर रहे थे. आपने ये एग्जांपल के साथ कोर को हिट किया, ये बहुत अच्छी बात है. वर्ल्ड कप में एवरीबडी वाज एक्सपेक्टिंग इंडिया के ग्राउंड पे, इंडिया में और अनबीटेबल टीम, तो ऑस्ट्रेलिया को तो हम तो फोड़ ही देंगे करके, और एवरीबडी वाज सो कॉन्फिडेंट और प्रे भी नहीं कर रहे थे भगवान को, तो ये तो जीता हुआ ही गेम है हमारा, तो सेलिब्रेट कर रहे थे. लेकिन पता नहीं क्या हो गया और फिर इंडिया ने उसको बहुत पॉजिटिव वे में लिया और वो जो इंडियंस के जो ड्रीम थे, सारे इंडियंस के, इतने करोड़ों लोगों के जो ड्रीम्स थे कि हम लोगों को कप मिलना चाहिए, नेक्स्ट चैंपियनशिप में उन्होंने करके दिखाया. तो ये जो बाउंस बैक मेंटालिटी है, ये वेरी वेरी डिफिकल्ट. इसके लिए उनको प्रेस करना बहुत जरूरी है. आपने देखा होगा वहां पे प्राइम मिनिस्टर उनके ड्रेसिंग रूम में जाके उनको मोटिवेट कर रहे थे. तो जो डिफीट के बाद मोटिवेशन चाहिए रहता है वो बहुत जरूरी होता है. किसी आउटसाइड से मोटिवेशन चाहिए था, कोई बात नहीं, हम लोग बाउंस बैक करेंगे. तो वो एक बहुत बड़ी बात है. और इसमें स्पोर्ट्स में कई एग्जांपल्स है. माइकल जॉर्डन ने बास्केटबॉल प्लेयर है, सबसे ज्यादा
जो पॉइंट हिट किए, लेकिन सबसे ज्यादा पॉइंट मिस भी उसने किए। हिट से ज्यादा मिस के पॉइंट है उनके। और मोहम्मद अली जितने पंचेस उन्होंने मारे हैं उससे ज्यादा खाए और उससे ज्यादा मिस किए पंचेस। तो आज वो मोहम्मद अली इतना बड़ा नाम है, तो बाउंस बैक करना अपने फेलियर से। कई ऐसे एग्जांपल्स है, सचिन तेंदुलकर डक पे कितने बार आउट हुआ है फिर भी हाईएस्ट सेंचुरीज है। नर्वस 99, मैक्सिमम 99 पे आउट, 90s में आउट होने वाला कोई होगा तो वो सचिन तेंदुलकर है, और मैक्सिमम आज सेंचुरीज होगी तो वो सचिन तेंदुलकर है। तो वो बाउंस बैक करने की एक मेंटालिटी और मेंटर, ये दोनों बहुत जरूरी है। बाउंस बैक, करेज टू फेल, उसके बाद बाउंस बैक करना, उसके लिए एक मेंटालिटी, माइंडसेट, मेंटर और मोटिवेशन, ये 4M बहुत जरूरी है। मेंटालिटी आपकी होनी चाहिए बाउंस बैक करने की, मेंटर आपको होना चाहिए, उससे मोटिवेशन मिलना चाहिए, और आपका माइंडसेट होना चाहिए। माइंडसेट, मेंटालिटी, एक ही बात होगी। 3 तो है उसमें बहुत जरूरी है आपको। और आपने सीए का एग्जांपल बहुत अच्छा लिया, क्योंकि सीए ऐसा देखा गया है कि एक जेईई में अटेम्प्ट नहीं हुआ, एडवांस में जाके नहीं हुआ, तो उसको कोई ना कोई कॉलेज मिल जा रहा है और वो अपने ड्रीम से कॉम्प्रोमाइज कर रहा है। हर किसी को आईआईटी बॉम्बे, चेन्नई नहीं मिल रहा है। आपके भी फ्रेंड्स होंगे, आपके भी ब्रदर्स होंगे, आपके भी सीनियर जूनियर, जो भी आपके सीनियर है ऑब्वियसली, कि आईआईटी मेंस क्लियर कर लिया, जेईई का मेंस क्लियर हो गया, जेईई एडवांस नहीं हुआ, फिर भी उसको कोई ना कोई कॉलेज मिल गया, ठीक है। फिर नीट में भी ऐसा ही हो रहा है। लेकिन सीए एकमात्र ऐसी फील्ड है जहाँ फेलियर होने के बाद वापस आपको अटेम्प्ट देना पड़ रहा है। तो ये सीए आप अपने आप के लिए क्लैपिंग करना चाहिए कि आपने ऐसा फील्ड चूज किया है जिसकी वजह से आप अगर फेल हो रहे हो तो आपको कॉलेज वगैरह नहीं मिल रहा है, आपको वही सारे एग्जाम्स वापस पढ़ाई करके वापस देने। तो ये बहुत डिफिकल्ट चीज है, ये आप लोगों को सैल्यूट है। मेरा भी ड्रीम था, मैं भी सीए बनना चाहता था, अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं बन पाया, मैंने वहाँ ये कर दिया। लेकिन आप आपके आज प्रेजेंटेशन देने के बाद मैं सोचता हूँ शायद मैंने भी बाउंस बैक करना चाहिए था। मैं फर्स्ट अटेम्प्ट क्लियर हो गया था मेरा ICWA फाउंडेशन, इंटर में मैंने फिर थोड़ा सा चेंज कर दिया अपना करियर। सेकेंडली मेरा ये बोलना है आपको कि आप कैसे डील करते हैं आपके फेलियर से। सर एज सच तो अभी तक इतने बड़े भी नहीं हुए कि बहुत बड़ा फेलियर देखे। सिर्फ एकेडमिक लाइफ में सब्जेक्ट्स में फेलियर देखा है, और अगर एकेडमिक लाइफ में कोई सब्जेक्ट में फेल हुए हैं सो बस उसी सब्जेक्ट को और थोड़ा सा एक्स्ट्रा ध्यान देना, उस पर थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट करना, गाइडेंस लेना। हाँ, गलतियाँ कहाँ पे हुई फिर तो वो देखना है कि हम कहाँ पे कम करते हैं, उसको इम्प्रूव करते हैं, बहुत अच्छी बात और है। फ्यूचर में भी यही और ये जो मिस्टेक्स का पॉइंट था ना, ये पॉइंट आपने बहुत अच्छा लिखा, एक्सप्लेन बहुत अच्छा किया, इसने किया था वो एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छा किया आपने। सही में ये जो पॉइंट्स आपने दिए, और वो पॉइंट्स से समझ में नहीं आता इतना जो आपने जो डिलीवर किया वाइल आपके स्क्रिप्ट में, वो बहुत अच्छी बात थी। तो बहुत अच्छा, थैंक यू सो मच सब, ओवरऑल आपका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा।